Okay. Good morning, dear students. From today onward, we are going to commence online classes for 11th class also. From today, we will go for our textbook chapter first, lesson first, the patriotism. This chapter comes under the poetry section. It is a famous poem written by Scottish poet Sir Walter Scott. The theme of this poem deals with the patriotism. So at very beginning we will know about the poet Sir Walter Scott. In his name you are noticing Scott is mentioned. Scott refers to his country Scotland. Sir Walter Scott was born in the year 1771 and passed away in the year 1832. He was born in the city Edinburgh, which is in the country Scotland. Alma mater means his further studies, university studies, college studies. He also completed his degree from Edinburgh University. And he graduated in the year 1783. Then what he did, he spent some time in the office of his father. After spending some time in the office of his father, he became a barrister. Barrister means advocate in the year 1792. And then after 5 years of becoming barrister, he was married to Charlotte in the year 1797. And then in the year 1799, he became a deputy sheriff. Deputy sheriff means sheriff is an officer of law. It means his father was advocated and he was also become an advocate and officer in the office of law. And later he also achieved title baronet. Baronet, it is a title in the Britishers. It is equal to sir. So in the year 1821 he was conferred with the title baronet. अब हम आगे बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी फील्ड में अपनी राइटिंग्स लिखी है. तो जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले वो थे हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट. हिज नॉवेल्स डील्स विथ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल थिंग्स. उनके जो नॉवेल्स थे वो हिस्ट्री के बारे में लिखे जाते थे और इसीलिए उनको क्या कहा गया है, हिस्टोरिकल नॉवेल्स. ही वॉज आल्सो ए पोइट. We are going to study the poem, so it is obvious that he was also a poet. He was also a playwright. What is playwright? Who is playwright? One who writes play is called playwright. तो उन्होंने बहुत सारे प्लेज भी लिखे हैं, इसलिए उनको प्लेराइट्स भी कहा गया है. और साथ में ही वो हिस्टोरियंस थे, अर्थात हिस्ट्रीज की बुक्स के ऊपर भी वो बहुत सारी चीज़ें लिखते थे. नाउ वी विल नो समथिंग अबाउट हिज इम्पोर्टेंट पोइम्स. He has written many poems, but most famous poem we are going to know. पोइट्री की जब हम बात करते हैं तो इनकी जो बहुत फेमस पोइम है 1796 में वो पब्लिश हुई, वो है द चेस एंड विलियम एंड हेलन. इसके बाद में 1805 में उनकी एक और पोइम आती है द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल. ये बहुत ही फेमस उनकी पोइम रही है. और उसके बाद में है मेरी मियोन 1808 एंड एट द लास्ट हेराल्ड द डॉन्टलेस 1817. दीज आर द फेमस पोइम्स रिटन बाय सर वाल्टर स्कॉट. अब हम बात करेंगे इस पोइम की पेट्रियोटिज्म की. पेट्रियोटिज्म पोइम में क्या है, तो इसका जो थीम है वो किससे रिलेटेड है, पेट्रियोटिज्म से. तो द पोइम डील्स विद द थीम ऑफ पेट्रियोटिज्म. ये जो पोइम है ये किससे डील्स करती है, ये पोइम डील करती है पेट्रियोटिज्म की थीम से, अर्थात देशभक्ति की थीम से. और द पोइट सर वाल्टर स्कॉट सेज दैट, जो पोइट वाल्टर स्कॉट है वो कहते हैं कि क्या कहते हैं वो, कि फाइंड ए मैन who so don't say this is my own land, this is my native land.
ऐसे व्यक्ति को सर्च करो कि जिसकी आत्मा ये नहीं कहती है कि ये मेरा कंट्री है, ये मेरी मातृभूमि है। एंड इफ़ यू फाइंड देन मार्क हिम वेल। यदि तुमको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसको मार्क करो। उसको मार्क क्यों करो कि मार्क हिम वेल फॉर नॉट टू प्रेज। उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, इसलिए उसको मार्क करो। और उसकी सोल क्या है? द सोल ऑफ दैट पर्सन इज डाइड बिकॉज ही इज नॉट appreciating his motherland. He doesn't love with his motherland. So the poet condemn those kinds of persons through this poem. So now we will go for the explanation of the poem through some graphics or some lines of your books. So you should be very alert and be ready for the explanation. Summary of the poem Patriotism, composed by Sir Walter Scott. This poem deals with the theme of patriotism. The poet Sir Walter Scott says that there is hardly any man with a soul so dead to not say that this is my own, my native land. ये प्रस्तुत कविता है, इसका जो विषय वस्तु है, थीम है, वो है देशभक्ति है। और इसमें जो पोइट सर वाल्टर स्कॉट हैं वो कहते हैं कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ये नहीं कहता होगा कि ये मेरा अपना देश है। अर्थात दुनिया में हर व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरा मदरलैंड है, दिस इज़ माय नेटिव लैंड। तो देयर इज़ हार्डली एनी वन हु डजेंट फील प्राउड और प्लेजर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ए फॉरेन लैंड टू हिज ओन लैंड। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो विदेश से अपने देश लौटने पर आनंद का अनुभव नहीं करता होगा। द पोइट सेज इफ देयर इज एनी मार्क हिम वेल फॉर ही डजंट डिजर्व एनी प्रेज। तो फिर वो कवि आगे कहते हैं कि यदि कोई ऐसा है तो उसे ठीक से मार्क करो, अर्थात उसे ठीक से चेक करो, परखो, क्योंकि वह किसी भी प्रशंसा पाने के लिए योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से, मातृभूमि से प्रेम नहीं करता है, वो किसी भी तरह की प्रेज को डिजर्व नहीं करता है। He may be a man with high title or name, with boundless possessions and high wishes. He, as the poet says, is rich and selfish. पोइट कहता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टाइटल, मतलब उसकी पोस्ट या पदवी हो सकती है, और उसकी बहुत ज़्यादा पोजेशंस, उसकी ऊंची आकांक्षाएं हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन जैसा कि पोइट कहता है कि वह व्यक्ति एक रेचिड है, दरिद्र है, गरीब है और स्वार्थी इंसान है। While living he shall lose all his comfort and riches. और वह अपने जीवन काल में ही सारे आराम व सारा रिचेस मतलब धन है उसको खो देगा। फिर उसके बाद में आगे कहता है पोइट, एंड आफ्टर हिज डेथ देयर विल बी नो मर्निंग फॉर हिम। और उसकी मृत्यु के बाद में उसके लिए कोई भी मर्निंग अर्थात कोई भी शोक नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। ही विल डाई क्वाइट अननोटिस्ड। और जब उसकी मृत्यु होगी तो उसको ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, अर्थात वह अनजाने में ही मरेगा। ही इज़ ए डबली डाइंग मैन। वह कैसी मृत्यु प्राप्त करेगा? वह डबली डाइंग अर्थात मतलब दोहरी मौत को प्राप्त करेगा। आम जो इंसान होता है एक बार मरता है, लेकिन वो जिंदा रहते हुए भी मर जाएगा, इसलिए पोइट ने उसकी डेथ को डबली डाइंग डेथ कहा है। द पोइट मीन्स टू से दैट ए मैन विदाउट पैट्रियोटिक फीलिंग इज ऑलमोस्ट डेड एंड आफ्टर हिज रियल डेथ नो वन रिमेंबर्स हिम। पोइट कहता है कि उसकी जो मृत्यु है अर्थात उसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होने के कारण वह व्यक्ति लगभग मरा हुआ है, और उसकी रियल डेथ के बाद में भी उसे कोई याद नहीं करेगा, जो कि क्या होगी? इट इज़ अनदर डेथ, ये उसकी एक और मृत्यु होगी। द पोइट कंक्लूड्स दैट द पर्सन हु डजंट लव हिज कंट्री विल डाई ए डेथ ऑफ इग्नोमिनी। और लास्ट में कवि इस पोइम को कंक्लूड करता है अर्थात निष्कर्ष निकालता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है वो इग्नोमिनी मतलब गुमनाम ही उसकी डेथ हो जाएगी, अर्थात गुमनाम ही वो मर जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।
It is complete summary of the poem patriotism. You need to note down this summary in your copy, and remaining things we will study in the next class. Thank you students again. Take care of you.